सो मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके। अच्छा, कुछ आइडेंटिटी हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको ये सॉल्व करनी है। ओके, इसमें से जो चीज़ आपको लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो मैं करूँगी। ओके, पूछ लेना मुझसे। डबल डबल आवाज़ें क्यों आ रही हैं? किसी का स्पीकर खुला है क्या? हेलो? नहीं मैम। अच्छा सबके म्यूट है। अच्छा, इको हो रही थी ना, अब नहीं हो रही है। कहाँ गड़बड़ हुई है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही ना? नो मैम, नहीं दिख रही। अब दिखनी चाहिए। यस मैम, यस मैम मैम। आईपैड देख रहे हैं। ओके ओके। सो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड में अभी तुम इतना ही समझ लो, इससे ज़्यादा अभी तुम्हें समझ में इसमें आएगा नहीं। ओके, सो लेट अस फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा, ये कुछ आइडेंटिटी हैं विच यू कैन प्रूव बाय नाउ। ओके, पर इसमें से अगर आपको कुछ लगता है कि ये नहीं समझ में आ रही है, कैसे करनी है, तो देन जस्ट आस्क मी। ओके, सो प्रूव दीज आइडेंटिटीज। First one, okay, delta phi plus psi, okay, where phi and psi they are the differentiable scalar field, okay, and A and B से mostly जहाँ कहीं भी मैं denote करूँगी they are vector field, okay. So delta phi plus psi, this is equal to delta phi plus delta psi. Second one, delta phi psi, this is equal to phi delta psi plus psi delta phi. Okay. Third, delta dot A plus B or divergence A plus B, this is equal to divergence A plus divergence B. Fourth one, delta cross A plus B, this is equal to, so curl A plus B, this is equal to curl A plus curl B. Okay. Fifth one, divergence phi A, this is equal to phi divergence A plus A dot grad phi. Okay. Sixth, delta cross phi A means curl of phi A, this is equal to phi curl A plus grad phi curl A. मैम एक बार थोड़ा ऊपर जाना है। अभी एक सेकेंड, एक और लिख दूँ? नहीं, अच्छा चलो ठीक है। सेवंथ,
okay, divergence curl A equal to 0 and curl grad phi equal to 0 and curl A curl A, okay, this is equal to minus delta square A plus grade divergence A, okay. सो डेल्टा स्क्वायर ए प्लस ग्रेड डाइवर्जेंस ए, तो ये आपकी कुछ आइडेंटिटी है, ये आप इसको प्रूव करोगे। इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है, ओके। सो यू कैन स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड, यू कैन प्रूव इट दैट इट इज इक्वल टू right hand side, or you can start with right hand side, you can prove it that it is equal to left hand side, okay. So the either way you can do it, so जो भी आपको करना है उसको कर सकते हो, चाहे ऐसे लेकर चाहे वैसे लेकर, ठीक है, ओके। सो हियर फाई एंड साई यहाँ पर लिख लो, हियर फाई एंड साई they are scalar point functions or scalar fields, okay, and A and B are, so A and B वेक्टर के लिए डिनोट हो रहा है एंड ये फाई एंड साई स्केलर के लिए डिनोट हो रहा है, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क, प्लीज डू इट। और इसमें आपको कोई डिफिकल्टी लगती है, यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम, ओके। ओके मैम। Okay, so now let us come to the next thing. Now I come to the integrals. Okay, ये differentiation का था, all about differentiation. Okay, differentiation में हमने काफ़ी कुछ कर लिया. Now we want to learn about integral of a vector. Okay, so integrals. So first of all, what is line integral, then surface integral and then volume integral, okay, and इसके ऊपर के based हम बहुत सारे numericals करेंगे, बहुत सारे questions करेंगे, so that it will become clear to you, okay. So first of all, let us know what is line integral, okay. मैम होमवर्क एक बार और दिखाना है। क्या चीज? होमवर्क। होमवर्क? अच्छा, just a minute. Prove these identities. Prove these 9 identities. ठीक है? Now can I go further? Yes, ma'am. Okay, so let us come to the integrals of a vector. So line integral.
So let us come to this line integral. Okay, so what is line integral? Okay, so the integral of a vector along a curve is known as line integral. So for this, to understand this, let us consider a curve. Okay, मैंने क्या किया, I consider a curve. Okay, इसका नाम मैंने रख दिया P से लेके Q तक है. Okay, so I consider a curve. Now let us divide this curve into, let us say, n number of pieces. Okay, तो and where n goes to infinity, तो क्या होगा, that one piece is very 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 small. So this is called infinitesimal length element. Okay, और infinitesimal element अकेला भी बोल देते हैं, it's a length element. अगर कर्व है तो it's a length element, surface है तो it's surface element, and volume है तो it's volume element कहलाता है. Okay, so यहाँ पर हम line integral consider कर रहे हैं. So if you consider a curve, let us say PQ. Now if you divide this curve into number of pieces, okay, let us say n number of pieces where n goes to infinity, then one piece is very 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 small. Okay, and we consider one such piece. This is called infinitesimal element. Okay, so infinitesimal length element. So we consider one such element, let us say dr. Okay, okay, now suppose a is a vector at this point. Okay, let us say इस point को मैं r बोल दिया. So a is a vector, okay, making an angle theta with dr. Okay, then if you define an integral from P to Q, and if you write down like this, a dot dr, okay, then this is the line integral of a, okay, along the curve PQ. Okay, so line integral क्या है, line integral is always along a curve. जब भी तुम एक लाइन कंसीडर कर रहे हो, कर्व कंसीडर कर रहे हो, देन यू विल यूज लाइन इंटीग्रल. अच्छा, ये जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर a डॉट डी आर लिखा है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट इनसाइड दिस इंटीग्रल a डॉट डी आर है तभी ये लाइन इंटीग्रल है. okay? अगर यहाँ पर अलोंग एक कर्व है देन इट्स ऑलवेज ए लाइन इंटीग्रल, चाहे यहाँ पर a डॉट डी आर हो, चाहे यहाँ पर फाई डी आर हो, चाहे यहाँ पर a क्रॉस डी आर हो, दिस इज ए लाइन इंटीग्रल. ओके, और लाइन इंटीग्रल को कभी कभी इस तरह से भी हम लिख देते हैं, सी एंड यहाँ पर है सपोज दिस वन. ओके, सो दिस इज योर लाइन इंटीग्रल. तो ये लाइन इंटीग्रल क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर along a curve. Integration of a vector along a curve is known as line integral. Okay, हमने क्या किया, we consider a curve. Okay, line integral को समझने के लिए you can consider a curve. Okay, ये मैंने एक कर्व ले लिया PQ. Okay, then I divide this curve. मैंने क्या किया, इस कर्व को छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लिया and I consider one such piece. Okay, तो उसको मैंने dr बोला. तो dr से यहाँ डिनोट किया है, यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर dl से भी कहीं कहीं डिनोट होगी किसी किसी बुक में, सो डोंट वरी. सो दिस इज ए स्मॉल इन्फिनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट. ओके, सो ये मैंने क्या किया, अब इस इन्फिनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट के ऊपर यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉन किया, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ दिस dr. ओके, देन इफ आई डिफाइन इंटीग्रल फ्रॉम P to Q a dot dr, then this is known as the line integral of a, okay, over this curve PQ. Okay, or around the curve PQ. समझ में आया क्या आया, line integral is always around a curve. Okay, now suppose if you want to write down surface integral, तब क्या होगा, then we consider ए सरफेस. सरफेस क्या होती है, लाइन. जब भी कभी कर्व की बात हो रही है तो कर्व की बात क्या, कर्व का क्या मतलब है, कि इफ यू फॉर एग्जांपल टेक ए पॉइंट और पॉइंट मूव करता जा रहा है, कहीं पर भी तो कर्व बन जाता है, राइट. तो यहाँ पर सिर्फ एक डायमेंशन होती है,
एंड अब सपोज इफ यू आर कंसिडरिंग ए सरफेस, तो सरफेस में कितनी डायमेंशन होंगी? ओके, इफ यू हैव फॉर एग्जांपल ऐसे है, ओके, ये एक्स एक्सिस है एंड यहाँ वाई एक्सिस है, ओके, तो ये इसे क्या बोलते हो आप? इसे एक्स वाई प्लेन बोलते हो, ये जो यहाँ पर है, राइट? ऐसे ही करते हैं ना, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये प्लेन क्या हुआ हमारा? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में कितनी डायमेंशन हुई? एक ये है और एक ये है, 2 डायमेंशन हुई। तो सरफेस की बात कर रहे हैं हम तब 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ओके। हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक ये भी पॉइंट वेरिएबल है और एक ये भी वेरिएबल है, ओके। सो सरफेस की बात कर रहे हैं हम तब 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तब मीन्स हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐसे इस तरह से हो जाएगा, राइट। सो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं माने 3 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, ओके। सो फर्स्ट लेट मी राइट डाउन द इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, the integral of a vector along a curve is known as line integral, okay. So for example, here I have shown, let PQ be a curve, okay, which is drawn in a vector field and dr, okay, an element of length along it at any point r making an angle theta let PQ be a curve drawn in a vector field and dr is an element of length along it at any point r, and let A be the vector at r making an angle theta with this length element dr, okay. Then if you define this integral, then the integral okay P to Q A dot dr, okay, which is equal to P to Q वेक्टर है तो ये लिख सकते हैं ax, a डॉट डी आर है, सो ax dx प्लस a बाई डी बाई प्लस a z d z. This is known or as the line integral of A along the curve PQ okay. So in general, any integral which is to be calculated along a curve is known as line integral, okay. And so not only this, all these things, like if you have let us say phi dr or
A cross dr. Okay, all of these are line integral. Okay, so चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, यहाँ पर इनसाइड वेक्टर ये कुछ भी हो, this is known as line integral because it is only along the curve. Okay, so now let me take few examples. मैम हाँ, मैम थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए। यहाँ पे यस मैम, हो गया। ओके। आई मीन अपर लिमिट नहीं है मैम, खाली सी नीचे निकली। अभी बेटा एग्जाम्पल्स करेंगे ना, अभी आपको पता चलेगा अपर लिमिट क्यों नहीं है। अपर लिमिट क्यों नहीं होगी? जब कर्व है तो उसकी लोअर लिमिट भी होगी, अपर लिमिट भी होगी, एक ही लिमिट थोड़ी होगी। इन्फिनिट कर्व है तो बात अलग है, राइट? सो नाउ लेट अस टेक फ्यू एग्जाम्पल्स। ये सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिसने इसे समझ लिया तो फिर उसको समझ में आ जाएंगी चीजें। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे ये लगता है इसमें कुछ। ये जो फाई डीआर में फाई है मैम, ये स्केलर फंक्शन है? हाँ जी, हाँ जी, फाई डी आर में फाई स्केलर फंक्शन है। ओके, सो नाउ स्केलर फंक्शन का भी अगर लाइन इंटीग्रल मतलब चाहे वेक्टर हो वेक्टर फंक्शन हो, चाहे स्केलर फंक्शन हो, इंटीग्रल के अंदर कुछ भी हो, लेकिन इफ यू आर कैलकुलेटिंग इट अलोंग ए लाइन देन इट इज नोन एज लाइन इंटीग्रल। ओके, along a curve, along a line, then it is a line integral. Okay, okay, so इसमें सिर्फ एक इंटीग्रल साइन होता है। अभी जब सरफेस आएगा तब उसमें दो इंटीग्रल साइन होंगे जिनको कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा तो तीन इंटीग्रल साइन होंगे जिन्हें कि आपको सॉल्व करना है। ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले तो सबसे सिंपल चीज ही आती है, सो लेट अस डू इट। ओके, so find, now let us take examples. So find the work done W in moving a particle in a force field given by F is equal to 3x by I minus 5zj plus 10xk along the curve कर्व क्या दिया हुआ है हमें? x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड z इक्वल टू t क्यूब फ्रॉम t इक्वल टू 1 to t इक्वल टू 2. Okay, good. So now let us do it. Okay, हमें निकालना क्या है? Find the work done W in moving a particle in a force field given by this. So हमें वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर हमें. So F is given to you और हमें कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है. सो x बाई जेड हमें दिया हुआ है और हमें लिमिट भी दी हुई है कर्व की. कर्व कहाँ से कहाँ तक है? t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक. ओके, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट इट. तो वर्क डन w क्या होता है हमारा? इंटीग्रल f डॉट डी आर. ओके, सो देयरफॉर यू हैव टू कैलकुलेट f डॉट डी आर. सो जैसे ये तो लाइन इंटीग्रल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ऑर्डिनरी इंटीग्रल होता है वैसे ही कैलकुलेट करना होता है, बिकॉज एक इंटीग्रल साइन है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, सो यू कैन डू इट वेरी इजीली.
सो डू इट. सो हमें यहाँ पर क्या है, एफ डॉट डी आर. सो एफ डॉट डी आर मीन्स, मैं यहाँ पे अब तो डायरेक्टली लिख सकती हूँ ना मैं, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी तुम लोग को, राइट. सो एफ की वैल्यू लिख दो यहाँ पर. मैं डायरेक्टली लिखा करूंगी अब आगे से जहाँ कहीं भी आएगा डॉट प्रोडक्ट खासकर. Okay, and dot product of this with dr. So this is dxi plus d by j plus dzk, and now this is equal to, so work done w is equal to then c, and यहाँ पर आ गया 3xy dx minus 5z dy plus 10x dz, and as you know all other terms are 0. Okay, अब हमें यहाँ पर along the curve, लेकिन कर्व की हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है. सो एक्स वाई जेड हमें दिया हुआ है. सो एंड एक्स वाई जेड हमारा t में है एंड t की हमें लिमिट दी हुई है. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट. सो फर्स्ट you have to substitute x equal to t square plus 1, y equal to 2t square, z equal to t cube in this. So just substitute it. तो क्या आया बताओ. So just substitute it. Okay. So I substitute it. So 3 and x क्या है हमारा, t square plus 1, y हमारा क्या दिया था 2t square and dt. Okay. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर 3xy एंड x हमारा दिया है t स्क्वायर प्लस 1, तो dx क्या हो जाएगा हमारा 2t. इज इट क्लियर. मैंने क्या किया यहाँ पर x और y की तो वैल्यू रख दी एंड dx यहाँ से कैलकुलेट कर लिया. dx क्या आया हमारा t स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि उसको भी तो हमें t की फॉर्म में रखना पड़ेगा. ओके, सो 2t dt नहीं आएगा क्या मैम. आएगा, क्यों नहीं आएगा. वेरी गुड. ओके, सो 2t dt सिमिलरली माइनस 5z. सो 5z हमारा क्या है, z इज t क्यूब एंड डी बाई यहाँ से कैलकुलेट कर लो. सो डी बाई हमारा क्या है 4t dt. इज दैट राइट. प्लस अब हमारा क्या है 10x, x हमारा क्या दिया था t स्क्वायर प्लस 1 एंड dz, और dz क्या आ जाएगा यहाँ से 3t स्क्वायर dt. इज दैट फाइन. सो अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. ओके, नाउ ये t की फॉर्म में आ गया. सो t को जहाँ जहाँ है मल्टीप्लाई कर लो. ओके, एंड देन राइट डाउन. सो ये क्या आ गया हमारा, अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो जहां जहां है एंड देन राइट डाउन 12t टू द पावर 5 प्लस 10t टू द पावर 4 प्लस 12t क्यूब प्लस 30t स्क्वायर एंड dt हर एक में है ही. सो dt आई कैन राइट डाउन हियर एंड लिमिट्स हमें दी हुई है t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2. So limits are from 1 to 2 and now solve like any other normal integral जैसे हम solve करते हैं and then substitute limits. Okay, so then substitute it, solve it and substitute it. कर लोगे कि नहीं करोगे इस इंटीग्रल को. नॉर्मल इंटीग्रल है अब तो ये. कर लेंगे मैम. गुड. द आंसर इज 303. Okay, so would you like to do for some more time or should I stop? Yes ma'am. I should stop. As you wish ma'am. हम होमवर्क भी है करना है. तुम्हारा क्लास नहीं है. हम क्लास तो नहीं है. क्लास नहीं मैम, पढ़ना तो है ना पर. अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे. सो ऑन सैटरडे. ओके. Yes. And Okay. but today I want to take your attendance. Maybe I can take. आज कितनी है तारीख 16. आयुष
अभय सिंह हांडा, अभिषेक सिंह, आदित्यनाथ, नहीं आदित्य दीक्षित, आदित्य प्रताप तोमर। ये तुम्हारी क्लास के नहीं है क्या? तुम्हारी तो क्लास में है, नवंबर 21 से। हाँ यही तो है। अजय चौधरी, अजय कुमार, अमन पटेल,